آج بہت اہم موضوع پہ جس کا سبھی لوگوں کو بہت دن سے ایک بے چینی سے انتظار تھا، وقف امینڈمنٹ 2025 کا جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا، ریزرو فار آرڈر تھا، اس کا آج ہانریبل سپریم کورٹ کے جانب سے انٹرم آرڈر آیا ہے صبح میں۔ یقیناً آپ سب لوگ جانتے ہیں تلنگانہ وقف بورڈ ہندوستان کا واحد اور سب سے پہلا بورڈ ہے۔ جیسے ہی یہ 2025 کا امینڈمنٹ بل آیا تو اس کی مخالفت میں سب سے آگے تھا۔ نہ صرف ہم اس کی مخالفت کیے بلکہ ایک خصوصی وقف بورڈ کا اجلاس بلا کر ہم ایک تمام بورڈ ممبروں کے تعاون سے ہم یہ ضرورت اور ہمت کیے کہ اس کی مخالفت بورڈ میں ریزولوشن پاس کر کے مرکزی حکومت کو بھیجنے کا ہم نے کام کیا تھا۔ اس کے بعد ہم یہ اس بورڈ میں یہ مطالبہ کیے تھے، جب پارلیمنٹ میں یہ ایکٹ آنے کے بعد اپوزیشن خاص طور پر راہل گاندھی جی کی قیادت میں انڈیا بلاک تمام ایک جٹ ہو کر تمام سیاسی جماعتیں، علاقائی اور مرکزی پارٹیاں اس کی مخالفت کرنے کے بعد مرکزی حکومت اس کو جے پی سی کے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجی تھی۔ اس کے بعد ہمارے بورڈ میں ہم ریزولوشن پاس کر کے پھر ہم یہ مطالبہ کیے تھے کہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی اسٹیٹس کو وزٹ کر کے اوپینین جو متعلقہ وقف بورڈ یہ جو اوقاف کی جائیدادیں ہیں، جو کنسلٹ لوگ ہیں ان سے اگر آپ کنسلٹیشن اور کنسنس پروسیس اگر آپ پورا براڈ وے میں اگر کرتے ہیں تو بہتر رہے گا اس کا نتائج، اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے۔ اس کے بعد پھر جے پی سی پورے اسٹیٹوں کا دورہ کی اور پھر ہم کو تلنگانہ وقف بورڈ کو وہ لوگ جے پی سی میں بلائے تو ہم لوگ ہمارے نمائندے پورے ممبروں کے ساتھ ہم جا کر وہاں پہ ہمارے جو آبجیکشنز تھے ہم جے پی سی کے سامنے رکھے، اور جے پی سی ایک براڈلی جو بھی ایکسرسائز تھا ان کا وہ کسی کے فیور میں تھا، اگینسٹ تھا، وہ بات الگ ہے، لیکن وہ پھر وہ پارلیمنٹ کو سبمٹ کر کے پارلیمنٹ میں یہ بل پاس کالا قانون جو وقف امینڈمنٹ تھا اس کو پاس کیے، جس کے ہم سب لوگ نے پرزور نہ صرف وقف بورڈ، تمام جماعتیں، تمام تنظیمیں، سب لوگ علماء مشائخین سب لوگ اس کو آگے آ کے اس کی مخالفت کرے، احتجاج کرے۔ اس کے بعد پھر یہ امینڈمنٹ ایکٹ سپریم کورٹ میں گیا۔ اس میں بھی بہت سارے لوگ اس میں اپنی طرف سے سپریم کورٹ میں گئے، تنظیمیں گئے، بورڈز گئے، مسلم پرسنل لا بورڈ گیا، سب لوگ انفرادی طور پر بھی گئے اور الگ الگ تنظیموں کے اور الگ الگ جماعتوں کی جانب سے بھی جانے کا کام کیا۔ تو ہانریبل سپریم کورٹ جو تفصیل سے اس کو سننے کے بعد آج ان کا ایک فیصلہ ریزرو فار آرڈر کے بعد آج فیصلہ آیا تھا، جس میں ہم لوگ جو میں سب سے پہلے وقف بورڈ کی جانب سے اور میری انفرادی جانب سے میں سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس ملک کے اقلیتیں جو عدلیہ کے اوپر، جو دستور کے اوپر جو بھروسہ ہے، پہلے قائم بھروسہ تھا، ہے اور رہیں گا، اور اس عدلیہ کے بھروسے کو قائم رکھتے ہوئے جو فیصلہ آج سنائے ہیں، یقیناً کچھ چیزیں جو ہم آبجیکشنز ریز کیے تھے، جس میں کلیکٹرز کے پاورز کو لے کے ہونے دیجئے، چاہے وہ
वक्फ बाय यूजर को लेके होने दीजिए, चाहे वो लिमिटेशन एक्ट को होने के दीजिए, और जो बोर्ड्स में जो नॉन मुस्लिम्स मेंबर को जो लाने की बात है, इन सब तमाम चीजों के ऊपर हमने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यकीनन कुछ चीजों को हमारे जो लोग जो कोर्ट में जो आर्गुमेंट्स हुए उसके ऊपर अग्री करते हुए, एक तो मैं समझता हूँ तेलंगाना वक्फ बोर्ड की और तमाम लोगों की एक काविशों से ये कामयाबी मिली कि जो कलेक्टर्स को जो पावर्स थे, क्योंकि हमारी जो वक्फ के जायदादों की जो असल लड़ाई है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से है। हमारे मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो हमारे जो मैटर्स है वो रेवेन्यूज और कलेक्टर के पास हमारे डिस्प्यूटेड है। तो वो अगर कलेक्टर को इसमें अगर हम, क्योंकि अगर इसमें हम तेलंगाना की मिसाल लेते हैं तो ये मजहबी उमूर के टाइम पे जब वक्फ का जब मामला था तो उसमें कई जगह पर, क्योंकि पुराने यहाँ पर मुस्लिम रूलर्स थे, तो जब ये इसको फिर एंडोनमेंट में लिया गया तो कई जगह पर सरकार बोल के लिखा गया था। सरकार बोल के लिखा गया तो उसको फिर आज के लोग उसको सरकारी बना के उसको कहने के, तो हमारा जो असल लड़ाई थी वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की थी। तो वहां पर कलेक्टर्स अगर हमारे मुंसिफ भी वही रहेंगे और मुद्दई भी वही रहेंगे तो हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। इसके ऊपर हम बहुत गहरी लड़ाई लड़े। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर दिया उसको, कि आप जो जुडिशरी है, आप जुडिशरी और वक्फ ट्रिब्यूनल के जरिए आइए, टाइटल डिसाइड ट्रिब्यूनल करेगा, ट्रिब्यूनल और बोर्ड जो करेगा उसको सिर्फ कलेक्टर्स एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी रहेगी। वो बहुत बड़ा बोर्ड के और ये औकाफ के जायदादों के हक में फैसला गया है। उसके बाद जहां तक नॉन मुस्लिम्स को बोर्ड में हमने ये बोला था कि जैसा दूसरे मजहब के बोर्ड्स में या फिर एंडोनमेंट्स में हो किसी और या क्रिश्चियन उसमें उनके जो सोसाइटीज होते हैं वहां पे मुस्लिम्स को कोई किसी का नॉन कम्युनिटी के लोगों को कोई इंक्लूड नहीं था, तो यहाँ पर हम भी यही हमारा ऑब्जेक्शन था। तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने जो जो उसका जो नंबर्स थे उसको नंबर्स को कम करते हुए एक्स ऑफिशियो मेंबर को भी इंक्लूड करते हुए 4 से 3 का प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो उसके लिए भी हम क्योंकि मैं अदलिया का यहाँ के आप तमाम के जरिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये हमारी डेमोक्रेसी की और अदलिया की ये हमारा ये ताकत है कि अदलिया ने अभी भी अपने दरवाजे खुले रखे हैं। हम अभी भी ये जो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड जो नॉन मुस्लिम्स का है इसके ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट से हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर फिर हम आर्ग्यू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि इंटरम ऑर्डर है, फुल ऑर्डर नहीं है ये, इसके ऊपर हम जाएंगे, उसके ऊपर हम लीगल एक्सपर्ट से बात करेंगे, तमाम मजहबी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हम बात करेंगे, सियासी जमातों से बात करेंगे, बात करके इसके ऊपर हम हमारे पॉलिटिकल पार्टीज से बात करेंगे, इसके ऊपर क्या हमारा स्टैंड रहेगा, फिर फर्दर हम सुप्रीम कोर्ट को देंगे। उसके साथ साथ जो वक्फ बाय यूजर है, वक्फ जो अहम मसला था, क्योंकि बहुत सारे औकाफी जायदादें रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का मसला था, तो वक्फ बाय यूजर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने यह रिलीफ दिया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जायदाद है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको टाइटल जब तक डिसाइड नहीं होगा, टाइटल होने तक उसको आप कोई आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके रिकॉर्ड में कोई किसी किस्म की तब्दीली आप नहीं ला सकते एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। इसलिए उसके साथ साथ मैं आपके जरिए में तमाम मुतवलियान को, मस्जिद कमेटी के लोगों को, जो भी वक्फ यूजर जो रजिस्टर्ड अभी तक प्रॉपर्टीज नहीं करवाए हैं, आप लोग इसको रजिस्टर्ड करवाइए। इसमें आपको पूरा बोर्ड में हम लोग बोर्ड में बैठकर आपके किस तरीके से हम इसमें मदद कर सकते हैं, हम आपको एक एक्शन प्लान के जरिए हम आपके सामने फिर आएंगे। लेकिन हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द इसको रजिस्टर, क्योंकि जो रजिस्टर्ड है तो टाइटल है, टाइटल के बाद ही उसके ऊपर आगे का उसके ऊपर डिसाइड होगा। ये 2-3 अहम बातें थे। उसके साथ साथ जो ट्रिब्यूनल का एक हो गया, वक्फ बाय यूजर का भी एक हो गया, और ये आपको कलेक्टर्स के पावर्स का एक है। और जो और एक अहम हमारी जीत ये हुई कि जो 5 साल अगर वाकिफ अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता है तो उसके लिए जो वो लोग जो एक अहम शराइत रखे थे कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। उसके ऊपर हम लोग सब लोग कोर्ट में बहुत
सख्ती से इसके ऊपर एतराज किए हैं, क्योंकि ये एक आस्था का, एक अपने यकीन का, अकीदे का मामला है वो। उसके ऊपर आप किसी के, आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बोल के कंडीशन नहीं रख सकते। इसको कौन डिफाइन क्या है, मतलब कौन करेगा कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट मरकजी हुकूमत करने की कोशिश कर रही थी कि वक्फ बोर्ड को किस तरीके से, जो लोग वाकिफ है, जो वक्फ करना चाहते हैं, उनको किस तरीके से रोका जाए। एक साजिश थी, साजिश को आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया, उसको खारिज कर दिया कि ये आप डिफाइन नहीं कर सकते। इसको आप स्टेट गवर्नमेंट, इसके ऊपर रूल्स फ्रेम करना है, फ्रेम करने के बाद आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए, तब तक आप उसको नहीं कर सकते। ये भी मैं समझता हूँ एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि कोई भी अपने अपने आस्था, अपने अकीदे के साथ कहीं पर भी डोनेट कर सकता है। अगर आप ये प्रोविजन हमारे पास रख रहे हैं, तो आप दूसरे भी, आप एनवायरमेंट में हो चाहे क्रिश्चियन में हो, आप उसमें, आप वहां पर भी रख सकते हैं। तो वहां पर ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। तो इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आर्गुमेंट्स थे, जो लोग आर्गुमेंट किए हैं, उन तमाम लोगों को उसने सही ठहरा करके इसको वो बर्खास्त कर दिया। उसके साथ साथ जहां तक हमारा एक ऑब्जेक्शन था कि सीओ से रिलेटेड एक ऑब्जेक्शन था कि भाई आप है सो, क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी मुस्लिम ऑफिसर्स नहीं है, आप डिप्टी सेक्रेटरी हमारा रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑफिसर्स की तंगी है, और नॉन मुस्लिम्स को आपसे, क्योंकि दूसरे एंडोनमेंट में और दूसरी जगह पर नॉन हिंदूज का प्रोविजन नहीं है। इसलिए हमारा आर्गुमेंट था कि आप यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स को आप प्रोविजन रखो। तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सुना, क्योंकि ये मजहबी उमूर का मामला है। मजहबी उमूर, मुस्लिम एक आदमी रहे, तो मुस्लिम अगर ऑफिसर रहा तो वो समझ